Yeah, friends, my name is Arvind Gupta. I head the Information Technology Group at the Bharatiya Janata Party, and I'm part of the team that is doing the digital campaign. So we are gathered here today to talk about the BJP 360-degree campaign. We'll give you some short AV also of the same, but we are here to showcase the whole campaign and how we are taking it 360 degrees from TV, radio, outdoor hoardings, to the web, to social media, and to also a plain simple mobile phone. Over the course of the next, during the press conference, we are going to discuss and tell you how we have taken latest innovations to relaunch the Shri Narendra Modi's website, which is one of the most visited websites in India, and the concept of Namo TV, and also a very powerful thing, the live audio bridge that we are going to talk about today, where you can listen to not only rallies live, but when there is no rally going live, you can hear the messages of Mr. Modi on a simple mobile phone without an internet connection. So that is how we are taking the campaign completely 360 degrees. So for example, when a rally happens on the ground, you are able to see the rally on a website using live streaming. You will be able to see it on Namo TV. You'll also be able to hear the rally live on a mobile phone, on a simple mobile phone, by dialing a number 022-4501-4501. We'll talk about a few other innovations in the digital campaign. And now I request to start the AV, please. टैलेंट, ट्रेडिशन, टूरिज्म, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ये 5 टी ऐसे हैं जिसके भरोसे हम ब्रांड इंडिया को लेकर के विश्व को एक बाजार बनाने की ताकत खड़ी कर सकते हैं। मित्रों, भारत उत्पादन करे, दुनिया खरीद करे, लेकिन इसके लिए हमने टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करना होगा, हमारी टैलेंट का भरपूर उपयोग करना होगा। One man's vision has inspired the nation. His words have resonated with every Indian, and not just at the rallies. His words have echoed across India with a little help from technology. Technology has ensured that Narendra Modi's words touch the hearts of Indians sitting in Mumbai while he addresses a gathering in Hubli, thanks to the live streaming made available online. After the event, a dedicated YouTube channel ensures that every word continues to inspire millions on the net, and not just in Hindi, but in various Indian languages too. যে 17 তারিখে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে, इथे पक्ष वाचविण्याचे प्रयत्न होत होते आणि इथे देश वाचविण्याची धडपड. Riding the wave of technology, this vision has spread itself far and wide. Narendra Modi has the largest social network following of any political leader. 11.4 million people access Narendra Modi's vision on his Facebook page and share it with their friends. 3.54 million follow his vision as tweets and then retweet. And then there are the Google Plus Hangouts, further fueled by the WhatsApp groups, the emailers, the blogs, the BJP website. We have even used technology to spread the party vision to places where advanced technology is yet to reach, using the humble mobile phone. Here's how. हेलो, नमस्ते। भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों बहनों, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं।
है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। But this vision isn't just about dissemination. It's a two-way dialogue. Technology has allowed voters and volunteers to gain direct access to party leaders. आपने 60 साल शासकों को दिए, 60 महीने एक सेवक को देके दिए। These words have inspired us, and this inspiration has taken the shape of our advertising campaign. नो कैप्टन, कमाल है, नो कैप्टन। बिना कैप्टन की टीम खाएगी मार, इसीलिए अब की बार मोदी सरकार। नो फालतू धरना, नो टाइम वेस्टिंग यार, इसीलिए अब की बार मोदी सरकार। The BJP has tackled 6 key issues which capture the frustration of the people. Besides television, we've taken the campaign to hoardings, radio and newspapers. But we didn't stop there. We went beyond. We have shot each television commercial in 4 languages, not dubbed, not subtitled, but filmed. In fact, the entire campaign will fold out in local languages across media, across India. And then, once again, we pushed the boundaries. We have taken the campaign places no political campaign has ever been before. पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। मित्रों, अभी हमारे गुप्ता जी ने जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसका कुछ उदाहरण दिखाया। हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट बनाई। हमें इस बात का भी गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने आजीवन सहयोग निधि के माध्यम से जो राजनीति में फंडिंग होती है उसकी पारदर्शिता का शुभारंभ किया। और हमें इस बात का भी गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसने ऑनलाइन डोनेशन की शुरुआत की, जो कि अब मोदी फॉर पीएम फंड के रूप में जाना जा रहा है। और आज मुझे इस बात का ऐलान करते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की पहली राजनीतिक पार्टी बनेगी जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दिन में करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी।
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी 3D होलोग्राम के माध्यम से देश के 1000 से ज़्यादा स्थानों पर भारत विजय रैली को संबोधित करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक, भारत नहीं बल्कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में, दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये पहला मौका होगा कि कोई राजनीतिक पार्टी और किसी दल और किसी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के द्वारा 3D होलोग्राम जैसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे लोगों से संपर्क और संवाद का कार्यक्रम होगा। इसका शुभारंभ हम 7 अप्रैल को पूरे देश में करने जा रहे हैं और 7 अप्रैल को थ्री होलोग्राम भारत विजय रैली लगभग देश के अलग अलग राज्यों में 100 स्थानों पर होगी, जिसको कि श्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे और देश के दूर दराज गांवों तक भी इस कार्यक्रम की योजना बनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी की भारत विजय रैली पूरे देश में चल रही है। उसके अतिरिक्त पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी सहित जितने भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव अभियान कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी की जो भारत विजय रैली है वो तो लगभग 100 रैलियों का हमने ऐलान किया था। ये उसके अतिरिक्त 1000 से ज़्यादा ये 3D होलोग्राम भारत विजय रैली देश के अलग अलग हिस्सों में होगी। इसका समय सायंकाल 6:30 बजे से लेकर के और 8 बजे के बीच में रखा गया है, जिसमें कि अलग अलग स्थानों में अलग अलग जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के मोदी जी के संबोधन से पहली बात ये स्पष्ट हो जाए कि कोई रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव मोदी जी संबोधित करेंगे, सीधा प्रसारण उसका होगा और लोगों को ये महसूस होगा कि लोग मोदी जी के साथ हैं और ऐसा महसूस होगा और विश्वास भी होगा कि ये सीधा संपर्क और संवाद चल रहा है। इस कार्यक्रम में मोदी जी के संबोधन से पहले हम नुक्कड़ नाटकों का भी कार्यक्रम करेंगे, जिसमें कि भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन युक्त भारत, सबका साथ और एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत भाग्य विधाता जैसे नामक नुक्कड़ नाटक मोदी जी के संबोधन से पहले उस कार्यक्रम स्थल पे होंगे। साथ ही देश भर के जाने माने कवि अपनी कविताओं के माध्यम से भी मोदी जी के संबोधन से पहले सुशासन का संदेश देंगे। देश भर के 1000 से ज़्यादा जगहों पर, जैसा मैंने कहा कि इस 3D होलोग्राम भारत विजय रैली की योजना बनी है और
पार्टी की हमारी यहाँ पर टीम केंद्रीय कार्यालय से सभी जिलों में, सभी प्रदेशों में संपर्क पे है और लगभग सभी राज्यों में, लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में हमने इस कार्यक्रम की दृष्टि से संयोजक, सह संयोजक नियुक्त कर दिए हैं और उन स्थानों पर कार्यक्रमों की योजना बन रही है जिसकी की जानकारी आपको हम देंगे। इसके अतिरिक्त आपको ये एक पुस्तक भी बाद में मिलेगी, दी जाएगी, जिसमें कि कई चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई प्रश्न है तो आप बताएं। हाँ, एक पुस्तक है, उसके अंदर एक सीडी भी है, पेन ड्राइव है, जिसको कि आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल हैं। मैं अरविंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रा इसको एक्सप्लेन करें। इसके अंदर ये जो हमने आपको हैंड आउट है बाहर आपके लिए अवेलेबल है, इसके अंदर एक नई तरह की पेन ड्राइव है। ये एक छोटा सा कार्ड है, विजिटिंग कार्ड साइज पेन ड्राइव है। इसके अंदर पूरे कैंपेन में जो आज एवी दिखाई गई है और कैंपेन मटेरियल और कैंपेन की जो फिल्म्स हैं सारे आपके लिए अवेलेबल हैं, तो इसको ज़रूर देखें और अपने वॉलेट में ज़रूर रखें इसको। ये एक बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है और इसका दूर दराज गांव में, जहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा, जहां पर जो है वो हो सकता है कि ट्रांसमिशन नेटवर्क ना हो, उसके बावजूद भी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे तौर से श्री नरेंद्र मोदी जी लोगों को संबोधित करेंगे। उस टेक्नोलॉजी का डिटेल उसके बारे में इसमें है, आप देख लेंगे। जी, मोदी जी अहमदाबाद से भी एड्रेस करेंगे, दिल्ली से भी करेंगे और देश के विभिन्न हिस्सों से भी कर सकते हैं। इसमें हम पूरे देश भर में 1000 से ज़्यादा कार्यक्रमों की योजना हमने बनाई है इस रैली की। अभी जो 7 तारीख को है वो हम 100 स्थानों पे कर रहे हैं और 100 स्थान जो है वो लगभग देश के सभी राज्यों में हमने तय किए हैं। देखिए, इतने बड़े पैमाने पर, इतने दूर दराज तक, न केवल भारत में बल्कि दुनिया के किसी हिस्से में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। गुजरात चुनाव में थोड़ा सा हमने इसको बहुत ही सीमित इलाके में किया था, लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो बहुत उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग टेक्नोलॉजी इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, नहीं, मैंने 1000 शब्द जो कहा, 1000 से ज़्यादा, हमने 1000 से ज़्यादा जब हम शब्द कह रहे हैं तो उसका नंबर और भी हो सकता है, लेकिन जो 100 स्थान हमने चुने हैं, 100 स्थान में 7 तारीख को जैसे हम उसका शुभारंभ कर रहे हैं 7 अप्रैल को, तो उसको 100 स्थानों से हम इसका एक साथ शुभारंभ कर रहे हैं और एक साथ 100 स्थान से जो सभाएं होंगी, जो कार्यक्रम होंगे, उसको मोदी जी संबोधित करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां मोदी जी पहुंच पा रहे हैं वहां पर भी होगा और जहां दूर दराज गांव तक, कस्बों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां भी होगा। इसलिए उसका वो कोई, इसमें कोई किसी तरह की बंदिश नहीं है कि मोदी जी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं इसलिए ये नहीं होगा। इसमें देखिए, हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, अभी आपने देखा हमारा पूरा आईटी से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हैं जो बहुत ही परफेक्ट हैं। उसके अतिरिक्त हमारी यहाँ पर एक टीम है जो इस कार्यकर्ताओं की जो इस काम में लगी हुई है, जो काम कर रही है, जिसमें कि हमारे पार्टी के सेक्रेटरी हैं श्याम जाजू साहब, वो हैं इसमें। उसके अतिरिक्त जो है वो चंद्रशेखर शर्मा साहब हैं, दुष्यंत चोपड़ा जी हैं, उदय नारायण मिश्रा जी हैं, प्रदीप कौशल जी हैं, कुल्लर जी हैं, मनमोहन
गुप्ता जी हैं, M.K. भट्ट साहब हैं, अशोक जी हैं, ऐसे करते हुए एक बहुत अच्छी टीम, कार्यकर्ताओं की टीम है। और उसके अतिरिक्त जो है वो हमारे IT जो डिपार्टमेंट है उसकी पूरी टीम एक इसमें काम कर रही है। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल ज़रूर कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो उसके टेक्निकल पहलू हैं उसकी जानकारी और उससे टाई अप जो कुछ है वो अलग है, लेकिन इसको हम पूरी तरह से जो इसका पूरा कार्यक्रम का आयोजन है वो कार्यक्रम का आयोजन पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा हो रहा है। हाँ, बहुत अलग है। अब मुझे तो इसमें क्या है बालकिन जी, बेहतर ये होगा कि इसका जब अनुभव होगा तो वो आपको, अभी तो 2 दिन की बात है, तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह से आप देख करके उसको समझ सकते हैं और बहुत अलग होगा और बहुत ही अद्भुत दृष्ट होगा। एक सेकेंड, हाँ पीछे। उससे भी ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी एडवांस है और उससे भी ज़्यादा अच्छी है। वो भी उसी टेक्नोलॉजी का एक थोड़ा निचला हिस्सा था जी। अलग अलग जगहों से हम अलग जगहों पे होगा कार्यक्रम, वो कहाँ से करेंगे वो आपकी जानकारी आ जाएगी। तय है। अभी हम लोगों ने अहमदाबाद रखा है, लेकिन इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दिल्ली भी हो सकता है, अहमदाबाद भी हो सकता है, या देश के विभिन्न स्थानों से भी हो सकता है जी। हाँ पीछे। देखिए, पहली बात तो ये कि ये आपकी नज़र का कमाल है और तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अटल जी हमारी नज़रों से और हमारे पोस्टर से कभी अलग नहीं थे, आडवाणी जी कभी अलग नहीं थे, और भी हमारी लीडरशिप कभी अलग नहीं थी। चुनाव के मैदान में जब होते हैं तो चुनाव के मैदान में हमने जब जिनको प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित किया है, जब अटल जी घोषित थे तो हमारा एक नारा था, जा चा पिरखा खरा, उसमें केवल अटल जी थे। आडवाणी जी को जब घोषित किया गया प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार, तो अधिकांश जगहों पे आडवाणी जी थे। तो इसलिए जिसको हम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं, जिस चेहरों को लेकर के हम सामने आते हैं, वो ज़्यादातर वो दिखता है, लेकिन उसके साथ पूरी लीडरशिप होती है जी। हाँ, अभी इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और है कि एक सेकंड। हाँ, बिल्कुल इसमें किसी तरह का वायलेशन नहीं है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके तहत होगा। उसके साथ ही साथ जो परमिशन रिक्वायर्ड परमिशन है उस परमिशन को लेकर होगा। और जहाँ तक सवाल है, इसमें ये पार्टी के एक्सपेंडिचर पर हो रहा है। पार्टी इसका पूरा के पूरा एक्सपेंडिचर करेगी, कैंडिडेट नहीं करेगा। नहीं 3D होलोग्राम की बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्टर, हाँ स्क्रीन वगैरह तो होगी, लेकिन प्रोजेक्टर ऐसा कुछ नहीं होगा। सूचना पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, जानकारी होगी कि भाई हम 7 तारीख को अमुक स्थान पर ये 3D होलोग्राम भारत विजय रैली हो रही है। इसमें जो है इस स्थान पे हो रही है, इतने बजे हो रही है। समय हमने बता दिया 6:30 से लेकर के 8 के बीच में होनी है। तो वो पार्टी के कार्यकर्ता उसमें जानकारी सबको देंगे। प्लीज यू आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, राजस्थान चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे हैज सेड दैट चुनाव के बाद देखते हैं किसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। शी वाज रिस्पोंडिंग टू इमरान मसूद, कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम सहारनपुर। डोंट यू थिंक शी इज टेकिंग द यूज ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज फर्दर एंड प्रमोटिंग? उन्होंने ठीक कहा
क्योंकि चुनाव के बाद ये जो सो कॉल्ड कांग्रेस का सेकुलर सिंडिकेट है, उसके मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ये होने वाला है। तो ठीक कहा उन्होंने। देखिए, पहली बात एक बात समझना होगा, कांग्रेस पार्टी का सियासी सेकुलरिज्म बुखारी साहब के दरवाजे पर दम तोड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का सियासी सेकुलरिज्म बुखारी साहब के चौखट पर दम तोड़ रहा है। और आज जिस तरह से कांग्रेस अपने करप्शन के कॉफिन में कम्युनलिज्म की कील ठोक रही है, वो कील 16 तारीख को आखिरी कील साबित होगी। जहां तक मुजफ्फरनगर दंगे का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने जो सेकुलर टूरिज्म किया, सोनिया गांधी जी से लेकर के राहुल गांधी जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी के तक, और घूम फिर करके चले आए, न तो लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया और न ही किसी तरह का आश्वासन दिया, बल्कि नमक छिड़क कराए। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार वहाँ पर है। उन दंगों में जो लोग पीड़ित हुए, जिस तरह का कत्लेआम किया गया, जिस तरह से एक वर्ग विशेष को छांट छांट कर उनको जो है वो प्रताड़ित किया गया, उनकी हत्याएं की गई, और एक के बाद एक लोगों के जख्मों पर मरहम के बजाय नमक और मिर्च छिड़कने का काम किया, तो निश्चित तौर से लोगों के स्वाभिमान और लोगों के सम्मान दोनों को ठेस पहुंची है। इसलिए चुनाव एक ऐसा लोकतंत्र का पर्व होता है, एक ऐसा मौका होता है जिसमें लोग अपने वोट की ताकत से, वोट के हथियार से ऐसी तमाम ताकतों को, जिन ताकतों ने लोगों के सरोकार और सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उसका वो जवाब देते हैं, उसका वो बदला लेते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही है, ये देरी शब्द कहाँ से आया? देरी तब होती जब हमने कोई तिथि घोषित कर दी होती। हमने कहा होता भैया हम जो है वो 5 तारीख को, 10 तारीख को, 11 तारीख को लाने वाले हैं। हमारी अधिकृत रूप से एक तिथि घोषित है और उस पर हम ला रहे हैं, तो इसमें देरी और सवेरी का सवाल कहाँ पैदा होता है? थैंक यू। पीछे हाँ। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है कि आज जो कांग्रेस हो या कांग्रेस के कुशासन का कुनबा हो, उसमें कोताहल मचा हुआ है। और इस कांग्रेस के कुशासन के कुनबे के कोताहल का मुख्य कारण है कि उन्हें दिखाई पड़ रहा है कि उनकी शर्मनाक हार सामने है, और इसलिए वो हताशा और निराशा भरे बयान दे रहे हैं, मुद्दों से भाग रहे हैं। जो वास्तविक सवाल देश के सामने हैं, उन सवालों को इग्नोर कर रहे हैं, और कभी जो है बुखारी साहब, तो कभी वो कौन है कोबरा साहब, तो कभी कुछ तो कभी कुछ, तो ये सारा जो कुछ चल रहा है हाश पाश, वो उनके डिप्रेशन, डिफीट का डिप्रेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।